Reading from Srimad Bhagavatam, 11th canto, chapter 7, verse number 37. Today we are discussing from the 24 gurus. The first guru is Earth. We will discuss in 1 hour, whatever we can cover, and the teachings of Mother Earth. Bhuter akramayanopī Dhiro deva vashanugai Tad vidvan na chale marga Anvasipam
भूते आक्रमणोऽपि धीरो देववशानुगै तद्विद्वान् न चले मार्गात् अन्वशिक्षंसितेर्व्रतम् भूते आक्रमणोऽपि दैवो धीरो दैववशानुगै तद्विद्वान् न चले मार्गात् अन्वशिक्षंसितेर्व्रतम्. Anybody want to recite? Anybody else? Bhuter Akraman Menopi Bhuter Akramanoti Dhiro Daiva Vasuriga Tadvidvan Chalir Marga Tadvidvana Chale Marga Anvasiksam Chitirvatam Anvasiksam Sudevatam. Anybody else? Bhuter Akramananopi Bhuter Akramanoti Dhiro Daiva Vasanuga Tadvidvan Chalir Marga Tadvidvana Chale Marga Anvasiksam Chitirvatam Anvasiksam Sudevatam. Bhute, various creatures. Akramana, being harassed. Api, although. Dhira, sober. Daiva, of faith. Vasa, the control. Anugai, simply following. Tad, this fact. Vidwan, one with knowledge of. Na chale, should not deviate. Marga, from the path. Anvasiksam, I have learned. Chite, from the earth. This vratam, this fixed practice. Translation. A sober person, even when harassed by other living beings, should understand that his aggressors are acting helplessly under the control of God, and thus he should never be distracted from progress on his own path. This rule I have learned from the purport by disciples of Sri Prabhupada. The earth is the symbol of tolerance. By deep oil drilling, atomic explosions, pollution and so on, the earth is constantly harassed by demoniac living entities. Sometimes lush forests occur down by greedy men with commercial interest, and thus a wasteland is created. Sometimes the earth's surface is soaked by the blood of soldiers fighting in serious warfare. Yet, despite all this disturbance, the earth continues to provide all the necessities of the living being. In this way, one will learn the art of tolerance by studying the Sunnah. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Today we are beginning with the lesson of 24 Gurus. The first thing Lord Krishna is telling to Uddhava a story of King Yadu meeting a mendicant in the forest who was detached, very happy. So he inquired from him that how can I learn to live in this world? How can I learn to be happy like you? So then that mendicant is telling, who is actually Lord only, that mendicant is Dattatreya, Lord Dattatreya. So Lord Dattatreya is enlightening that I have learned many things by just surrounding. So those who are very conscious and very awake, they can at every moment of life learn lessons. While walking, while seeing, while observing people, anything, they get lessons. So one of the things he is learning lesson is from Mother, because every time first thing in our day,
we can't get contact with Mother Earth. Many people have the practice when they get up. My father I have seen. As soon as he will get up, first thing he will do is पहले जमीन को छुएंगे ऐसे, प्रणाम करूँ, मैं आपके ऊपर परचम रखने वाला हूँ, कृपा करके मुझे टॉलरेट। And Mother Earth is so tolerant. Somebody may pass stool at her, still she is giving shelter. People may do whatever with Mother Earth, still that Mother Earth is giving shelter to living. And purport says people are doing deep oil drilling, whatever, still Mother Earth is giving shelter. So he's saying that as Mother Earth is so tolerant, भूते आक्रमणों की, भूते आक्रमण मतलब अटैक करना, आपको हैरेस करना, तो जीवात्मा भूमि पर आक्रमण करते हैं, फिर भी वो उनका सेवा करते हैं। ऐसा नहीं कि भूमि पर अटैक करे तो चलो अब मैं भूमि हट जाती हूँ, और अपना तुम लोग ओसन में सेंटर में। Still the Bhumi is giving. Why does Bhumi, in what consciousness one should tolerate the ill behavior of others? In this world, people will behave in wrong ways with you. If you are fortunate, few will behave wrongly with you. Otherwise, many will behave wrongly with you. So, how does a saintly person want to focus, want to go back to Godhead? What lesson it takes from earth is, I should learn to tolerate. And when people are behaving in wrong ways, धीरो दैव वशानुगा, जो धीर व्यक्ति है समझते हैं देववश, वो व्यक्ति कैसे एक्ट कर रहा है? देववश मतलब is controlled by three modes. उसके हाथ में वो कंट्रोल नहीं मिलता है। जैसे मच्छर काट देता है, सेंटली पीपल को उसको क्रोधित, मच्छर काट दिया, छोड़े नहीं, अंडरस्टैंड उसका स्वभाव है काटना, उसका आपसे कोई वैर नहीं, उसको भूख लगा, क्या लगा बेचारे को, उसको थोड़ा सा ब्लड मिल जाएगा तो फिर संतुष्ट होगा। So one should understand कि मच्छर का कोई गलती नहीं है, वो उसका स्वभाव है फूड पीना, समझ रहे? So a saintly person should understand धीरो दैव वशा नुगः, समझ रहे? इसीलिए समझना चाहिए कि वो लोग अपने स्वभाव से विचलित नहीं हो रहे। एक बार महात्मा जी रहते हैं, उनको भिक्षु काट लेता है, फिर से वो उसको पानी में छोड़ के आते, वो फिर से भूमि में आके काट लेता है, फिर भूमि में छोड़ के आते हो पानी में। ऐसा 10-20 बार होता है, लोग बोलते हैं पागल हो गए, आप क्या कर रहे हो? भिक्षु आपको काट रहा है, आप उसको मार क्यों नहीं देते, आप उसके साथ क्यों खेल? नहीं अपना, व्हाई यू आर डूइंग लाइक दिस? उन्होंने बोला मैं क्या करूं, मैं भिक्षु से सीख रहा हूँ, भिक्षु बोलते हैं ना, भिक्षु, तो भिक्षु से सीख रहा हूं मैं कि भिक्षु स्कॉर्पियन इज नॉट रेडी टू गिव अप हिज स्वभाव, कि अपना स्वभाव, इसका स्वभाव है ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, तो व्हाई शुड आई गिव अप माय स्वभाव इज फॉरगिवनेस, माय स्वभाव शुड बी, साधु का स्वभाव होना चाहिए लोगों का कल्याण करना, सुहित सर्वभूतानां, ऑलवेज वेल विशर ऑफ, सो ही इज नॉट गिविंग अप हिज स्वभाव, व्हाई शुड आई गिव अप माय। इस प्रकार से साधु को हमेशा दूसरों का सुख चिंतक होना है, इवन दो seemingly other people are behaving wrongly with them. So those who want to go back to Godhead, all are like sadhu. They are devotee का word का meaning होता है साधु, समझ रहे? तो इस प्रकार से भक्तों को अगर अपनी लाइफ में भगवत धाम जाना है तो इस शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। तो 24 गुरु में से एक गुरु हमारे कौन है? मतलब कितना चुपचाप चलते हैं, उनको शेल्टर देती, जो उसमें थूकते हैं, टॉयलेट करते हैं, उसको भी शेल्टर, टॉयलेट कर रहा है मान लीजिए, भूमि पे बैठ के टॉयलेट कर, भूमि बोलेगा मेरे पर टॉयलेट क्या, हट जाती, तो कहाँ गिरेगा पता नहीं,
So the Mother Earth is so merciful. So in this way we can see it's very important because तभी आदमी भजन में प्रवीण हो सकता है, तो आदमी सहना सीखेगा। और छोटी छोटी बातों से वो विचलित हो जाएगा, उसका भजन में अभिनिवेश नहीं हो सकता। जैसे एक बार एक शिष्य थे, वो गुरुजी के पास गए कि गुरुजी मेरे को दीक्षा की, बहुत उत्साहित था। गुरुजी ने बोला ठीक है, थोड़ा दिन इंतजार कीजिए, देंगे। तो उसके अंदर थोड़ा सा वो था कि मैं भक्त हूँ, ये हूँ, वो। तो एक दिन वो जप कर रहा था, बहुत अच्छा जप करता था, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 राम। तब तक क्लीनिंग का टाइम हो गया। तो उस आश्रम में एक झाड़ू वाली आती थी, तो गुरुजी ने बोल दिया सब उसके मुंह में झाड़ू मारना, झाड़ू मारोगे तो कैसे मारना, जिधर जप करो उधर ही करना। वो वाली उसको गुरुजी ने बोला तो क्या कर, वो झाड़ू का जितना छोटा सीधा था सब धूल किसको उड़ाने लगी। उधर बेचारा कोने में जब कर चिल्लाने लगा, अंधी दिखता नहीं तेरे को, साधु में फेंक दिए, तू बुद्धि नहीं है। वो तो ऊपर से बोलता रही थी बेचारी, फिर बोली नहीं। फिर अगले दिन वो आए, फिर साधु जी ने बोला टारगेट, समझ रहे। फिर वो टारगेट लाए और बढ़िया से मारी, और फिर उसको गुस्सा आ गया, अरे अंधी तेरे को दिखता नहीं, कल बोला था। ऐसा 1-2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। उसके पास गुरुजी ने बोला आज तुम पूरा डलिया डाल देना, डलिया में इकट्ठा करती है पूरा। तो जब कहा था हरे कृष्ण डलिया लाई और गाय बहुत प्रेमानंद, हम उसको चिड़ चढ़ा। लेकिन तब तक वो गुरु जी का आश्रम में रहता, जब कैसा प्यूरिफाइड हो गया, चुपचाप मान चला। गुरु जी बोले आज तुम क्वालिफाइड हो गया दीक्षा में। आज तुम क्या हो गया है, टुडे यू आर क्वालिफाइड फॉर। तो भजन करने का क्वालिफिकेशन यू शुड लर्न। अगर भजन में प्रवीण होना, गाढ़ा होना है, तो दुनिया में हमें समझना पड़ेगा कि नाद अपनी प्रार्थना करना पड़ेगा। कब ऐसा दिन आएगा कि बिना पे करती नहीं है, सकल सहने बल दिया तो रवि जो मन में जब तक अहंकार है, मैं ये हूँ वो हूँ, तब तक क्या भजन होगा। भजन शुद्ध करेगा अहंकार को, लेकिन उतना गाढ़ा भजन नहीं हो पाता। इसलिए अगर भजन में रुचि लानी है तो आदमी को अपना अहंकार छोड़ना पड़ता। इसलिए गुरु जी खुश हो गए कि आज इसने क्या छोड़ दिया, भजन का अहंकार छोड़े, जो भजन कर रहा हो अपने पाप छोड़ दिए। गुरु जी तुरंत उसको दीक्षा। इसलिए बहुत जरूरी है। पर नामदेव बाबा जी थे पंढरपुर में, बहुत बड़े भक्त थे। तो पंढरपुर में वहां नदी है, हम लोग गए थे वहां पर। विनीत को काम खराब हो गया था, स्नान लिए तो चंद्रभागा से चंद्रभागा बोले तीर्थों में नहाने का बहुत महात्मा है। हम लोग तो तैरते तैरते नहीं, पैदल चलते रहते, सोचते थे पानी यहाँ तक आएगा, लेकिन उस किनारे पहुंचे, क्लास किए थे। तो चंद्रभागा नदी में वो रोज स्नान लेते थे, तो भगवान का दर्शन ले जाते थे। तो जा रहे थे तो एक मुसलमान व्यक्ति को उनपे क्या हो गया, द्वेष आ गया। कुछ लोगों को आप पे अननेसेसरी द्वेष आ जाता है कि बड़ा साधु है, दिखाता है, बड़ा भक्त बन के दिखाता है, मतलब टेस्ट लेंगे, आज हम लोग क्या लेंगे, सब लोग गुरु ही बन जाता है हम लोग, समझ रहे। फ्रेंड भी देखेंगे, बहुत लोग बोले हम तुम्हारा परीक्षा लेंगे। हम कॉलेज में जब भक्ति कर रहे थे, थोड़ा भक्ति कर रहे थे, सोपल्ड भक्ति, भक्तों से मिला नहीं था, बट मैं थोड़ा गीता उता पढ़ा अपने आप से। तो फिर मेरा रूम के बाहर लिख दिया योगी बाबा, और कुछ लोग मेरे को बोलने लगा एडवेस था। ऐसे मैं घूम रहा था, एक दिन मेरे को बहुत लोग गैंग था यूपी के भक्तों का, मतलब भक्तों नहीं, यूपी के लोगों का। तो वो लोग जैसे बहुत एडवेस होने लगा कि लोग इसको रिस्पेक्ट दे रहा है, ये वो। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन मेरे को रूम में गया था, तो लोग का बोला रुको इधर गया, तुम बहुत बड़ा बाबा बन रहे है ना, तुम रियली में भक्ति करना चाहता है, तुम रियली में कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तुम रियली बाबा बनना चाहता है, तो तुमको हम लोग कानपुर लेके जाएंगे।
वहां पर बाबा जी हैं, समझ रहे, उनके पास ले जाएंगे और रियल बाबा होगा तो पता चलेगा, नहीं तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये तेजस्वी बाबा है ये क्या बोल रहा है समझ में नहीं आया। So many people are very envious कि तुम सच में जो बाबा है तो टेस्ट होगा तुम्हारा, ये होगा वो है, तो इस वजह से many people are envious। So एक मुसलमान व्यक्ति थोड़ा सा बाबा जी से envious हो गया कि वो बाबा जी अपना रोज सुबह उठ जाते हैं, बिना कपड़ा घूमते हैं, कोटिंग पहन के घूमते हैं, दिखावा कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, एक दिन महात्मा जी जाए तो महात्मा जी थूक दिया, तो थूक गिर गया, तो चुपचाप गए, फिर से नहा गया, फिर थूका, फिर नहा गया, फिर थूका, फिर वो बार बार थूकता था, बार बार 25-30 बार थूक दिया हमारा, बार बार जाते बिना के। फाइनली उसको मतलब 25-30 बार थूकने के बाद महात्मा जी इतना संग हो गया, उनका प्यूरिटी और कंपैशन और प्रेयर्स के बाद कहते चेंज हो गया, वो पाँव पे पड़ गया कि मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, 25 बार थूक फेंका, तो नहीं बहुत अच्छा किया, अच्छा किया, मतलब आपने मैं परेशान किया, तो आपकी कृपा से मेरा 25 बार स्नान हो गया, फिर तो मेरा कितना बार स्नान हो गया, नहीं तो मैं 1 बार स्नान लेता था, आपकी कृपा से आज मेरा कितना पुण्य बढ़ गया। इस प्रकार से हम देखते हैं भूतेर आक्रमणों की, लोग बुरा भी व्यवहार करें कभी भी उनसे नफरत न करके समझना देववश वो व्यवहार कर रहा है ऐसा, और आदमी अपना भक्ति में लीन रहे, मान न चले, आदमी को अपने भक्ति के फोकस से नहीं हटना चाहिए, लोगों के कमेंट के द्वारा, लोगों के विचारों के द्वारा आदमी को अपना भक्ति का जो मार्ग है उससे विचलित नहीं होना, न चले मार्ग। जो विद्वान व्यक्ति है वो दिव्य भक्ति के मार्ग से विचलित नहीं होगा, लेकिन जो उतना गाढ़ा भक्त नहीं है वो छोटी छोटी बातों पे क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। जैसे एक बार एक व्यक्ति रथ यात्रा था, तो एक नया बच्चा आया था, कोर्टे से पास आउट हुआ था, तो मेरे कांटेक्ट में था, तो आया था रथ यात्रा में, उस सब के लिए तो बुलाया था, प्लीज आइएगा, बहुत सेवा का जरूरत भी होता है रथ यात्रा में। तो मेरा था बहुत सेवा ले लेता था जगन्नाथ जी के लिए, जितना सेवा आता था मैं ले लेता, ये वाला भी दे दीजिए, वो वाला भी दे दीजिए, कोई करेगा तो ठीक है, लेता हूँ भी कर सकता। जगन्नाथ जी ने बहुत आदान प्रदान भी किया था, बहुत आदान प्रदान करते। 7-8 साल पहले की बात है, मैंने बहुत ज्यादा लोड ले रखा था, तो मैंने सोचा कोई भी डिवोटी आए तो मोस्ट वेलकम, क्योंकि सेवा बहुत ज्यादा मैं ले रखा था, और मुझे पता था अकेले में तो कोई भी तरह का वॉलंटियर चलेगा, भाई आ जाओ उसको सेवा। तो एक लड़का जब पास आउट हुआ था तो मैंने उसको बोला कृपा करके आप भी आइए, थोड़ा सा बहुत सेवा रहेगी। तो भी मेरे कहने से कॉलेज से पास आउट होकर जाया था, लेकिन आ गया, बैग लेके आया था एक तो, और रथ का दिन था तो मैं व्यस्त था, रथ चलने वाला था उस दिन, ऐसे रथ का दिन था, सेकंड दिन था, कुछ पैसे रथ का ही दिन था, मैं बहुत व्यस्त था। शाम के समय रथ पहुंचा, वो अपना बैग लेके वो भी पहुंचा, और पहला दिन जब रथ पहुंचता है तो लाखों लोग का भीड़ होता, और खिचड़ी का लाइन में कोई जाएगा भजन होता है, जिसको श्रद्धा है वही जाता है, और सबको श्रद्धा होता है, किसी को प्रॉब्लम होता है, गाली गुलोच जो होता है किसी को प्रॉब्लम, सिक्योरिटी का रिवॉल्व हो जाए, लोग एकदम लाइन तोड़ देते हैं एकदम। और दिन 3 आइटम बताया था, खिचड़ी, हलवा, हल्दम, मतलब पूरा हेक्टिक। अब मैं थोड़ा सा व्यस्त था कि बहुत सारे वॉलंटियर्स को ख्याल रखना चाहिए था, वो था सेवा। तो बच्चा आया, शायद खिचड़ी के लाइन में लगा, और उसको कोई तो पूरा डांट दिया, ऐसा डांटा वो कि वहीं से वहीं वो मेरे से मिल भी नहीं पाया। तो फोन करके बोला, अरे आ जाओ अगले बार आएंगे। बोले भाई जगन्नाथ जी गलत है, इतना मर्जी मिलेगा, प्लीज आओ, मैं जो गलती मैं माफी मांगता हूँ, तो कर्मचारी कुछ बोल दिया, कोई भी चिल्ला दिया। अब इतना हॉट एनवायरमेंट कोई भी चिल्ला देगा, मतलब उसको उतना ट्रेनिंग हुआ नहीं था, तो वो बेचारा पूरा एकदम बहुत रिक्वेस्ट करा था। तो पॉइंट इज दैट आदमी जब इस शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता है जीवन में, तो ठीक है, मानता हूँ कुछ गलती हुई होगी,
उसकी गलती हो या दूसरे की गलती हो, समझ रहे हैं? हो सकता है किसी का व्यवहार पुलिस का है, कोई भक्त का है, किसी का कुछ व्यवहार हो सकता है उचित न रहा हो या रहा हो, जो भी हो, लेकिन उसके विजन नहीं था कि मैं किस लिए आया हूँ यहाँ। उसका विजन होता कि मैं किस लिए आया यहाँ पर, रथ यात्रा सेलिब्रेट। ऐसे मैंने एक डीआईजी को बुलाया था मुजफ्फरपुर से, जो ट्रेन में भेंट हुई थी, तो एक व्यक्ति से, उनका फ्रेंड थे डीआईजी साहब, तो भोपाल का जो कोबोला था 50th ईयर्स 2015 में जलदूता यात्रा वाला, तो मैं जितना लोगों को बुलाने का प्रयास किया था, हम लोग वॉइस से भी करीबन 250 लोग बच्चे गए थे, 3 बस गया था सबका। कौन कितना था आपको भी? तो 3 बस गया था, 250-300 बच्चे गए थे। तो मैं बहुत सारे और भी अपने मम्मी को बुलाया था, मौसी को भी, और भी जितने लोग को बुलाने का तो हमारा प्रयास था, जितने लोग आएंगे। तो डीआईजी सिंह को भी बुलाया था, जिसमें रिश्ता कुछ नहीं था, तो बुलाया था। बहुत बड़ा उत्सव होगा, अनूप जलोटा भी आने वाले थे, और हमारे किरण बेदी और हमारे बहुत सारे महाराज लोग, तो बहुत ही टाइट प्रोग्राम था। तो डीआईजी को भी बुलाया था। उसके लिए मैंने वीआईपी पास भी रखा था, समझ लो, उसको वीआईपी पास दे दूँ। और मेरा बहुत सारा सेवा का केयर और भी कुछ सेवा था, तो मैं भागते रहता हूँ। जब मैं मैनेजमेंट में रहता हूँ, टेम्पल का सेवा में रहता था, तो मैं दौड़ते रहता हूँ। मैं दौड़ ही रहा था, तो बहुत कुछ करना था। और उस दिन क्या, गेट पे बैरिकेड मार दिया, तो भीड़ अनकंट्रोलेबल हो गया, तो गाड़ी उड़ी घुसने से, तो वो आदमी आया, तो उतना भीड़ देखा, गेट तक पहुंचा। तो गेट था ना, बाहर एक गेट है स्टेडियम का, वहां पहुंचा, इतना भीड़ देखा, मैं को फोन कर दूं, मैं कौन सा गेट, मैं भी दौड़ रहा हूँ इस गेट से उस गेट। फाइनली वो आया, इतना भीड़ देखा, जब लोग घुसने नहीं दे रहा, कार्ड होने के बाद भी मतलब रोक रहा था, मतलब देख के घबरा गया और चला गया। कहाँ है आप? मैं गेट पे पहुंच गया, लेकिन वो बोला नहीं, हम अभी थोड़ा प्लीज आइए, मतलब रिक्वेस्ट आएगा, उसके लिए भक्ति बढ़ सकता था उसका। मैं 1 घंटा तक रिक्वेस्ट किया, 4-5 फोन किया, मुझे तो टाइम नहीं मिला, लेकिन मुझसे कम समझ था, मुजफ्फरपुर से आया, समझ रहे, कहाँ तक, कलकत्ता तक, अब फिर उसको जमा देता हूँ। हाँ वही सही बोला, भगवान ने पास नहीं दिया, बिकॉज ईगो इतना ज्यादा था। जीसस बोलते हैं, इट इज मोर डिफिकल्ट टू मेक अ रिच मैन डिवोटी देन टू पास एलिफेंट थ्रू रीडर। तो ईगो इतना होता है ना, भजन नहीं करता, कोई कुछ बोल देगा बस। इसीलिए उसका विजन नहीं था, समझ नहीं पाया कि मैं बोला। और ऑप्शन क्या था भाई, मतलब ठीक है, मैं आपको गेट पे स्पेशल कुछ करवाया था, बुझाया था आपको, लेकिन फिर भी समझना चाहिए 15,000 लोग आने वाले। ऑलरेडी सुबह नामट का प्रोग्राम हुआ था, दैट में ऑलरेडी 7-8 हजार लोग आ चुके, और वो उसका एक भीड़ और दूसरा भीड़ आना, मतलब कैन यू इमेजिन क्राउड क्या था। उसके बाद वो आदमी सब नहीं समझ पा रहा है, जस्ट ईगो हैज कम दैट जल्दी जाएंगे। तो इस प्रकार से जब विजन नहीं होता लाइफ में, तब किस लिए क्या कर रहे हैं, तो छोटी छोटी बातों से आदमी भक्ति छोड़ सकता। तो कुछ बोल दिया और वॉइस में दे दिया, तो कुछ प्रसाद नहीं मिला, हमको कोई लोग केयर नहीं कर रहे। विजन क्या, समस्या आती है। मैं जब बीएचयू में था, बहुत मेहनत कर रहा था, वर्किंग वेरी हार्ड, इसमें डिनर भी नहीं लेता था, टीचिंग करते रहता था, शाम को 2-3 घंटा पढ़ाई करने में 7 बजे निकलता, 10 बजे तक आता था। रोज टीचिंग करता था, 3-4 घंटा हार्डली खाता था। तो एक दिन टीचिंग करते तो बहुत लेट हो गया, तो 10 बज के 10 मिनट पहले हॉस्टल में चिल्लाता था, बंद होने वाला था, मैं निकलता था तो 1-2 बच्चे के साथ। तो फिर 10 बजे एकदम गेट तो लॉक करता था हम लोग, फिर साइकिल से फिर निकल के, फिर एक हैदराबाद गेट था, वहां से हम लोग निकलते।
वो 10 बजे बंद कर रहा था, फिर 10 बजे 5 मिनट में तुम दौड़े तुम साइकिल एक दिन तो 1000 लेट हो गया, 10-25 हो गया, तो तुम बंद कर दिया। तो मेरे को पूरा एकदम उधर से होके आना पड़ा, 4-5 किलोमीटर इधर जाना था, गेट मेन गेट मेन गेट है 4 किलोमीटर आगे, और उधर से फिर रास्ता है कुछ एकदम टूटा रास्ता। तो मैं 8 किलोमीटर साइकिल चला, ठंडे का समय, कपड़ा पहना है तो मेरा तो ऑलरेडी 2-1.5 घंटा साइकिल चलाता है, 11:45 बजे पहुंचा मैं, इतना ठंड था और मेरा पूरा, बट आई वाज वेरी हैप्पी कि मैं किसी को सर्व किया, प्रीचिंग किया। तो वॉइस में घुसा तो 3 रूम था वॉइस में, तो घुसते के साथ सेकंड रूम था, थर्ड रूम था, फर्स्ट रूम में एक डिवोटी सोए हुए थे। मैं गेट खोला और मैं पूरा एक्सेसी में था कि प्रचार करके आया था, प्राउड भी था कि हाँ प्रचार करके रात दिन भगवान का सेवा मैंने एक कर दिया, कितना सेक्रीफाइस किया। तो एक फॉल्स प्राइड होता है कि मैं कुछ गजब किया, समझ रहे? तो गेट खोला तो बंद करने का मेरे को सुझा नहीं। बहुत बार आप जब दूसरा दुनिया में होते हो ना, तो आप स्विच चालू करना जानते हो, उसके बाद आपको दिखता ही नहीं कि चालू किया, समझ रहे? मैं तो पूरा एक्सक्यूज़ी में था, दूसरों को उसको किसी का बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम था, उससे था बात करके लेट हो गया। मैं सोचा था मैं कितना बढ़िया किया, किसी को भगवान का नाम इंट्रोड्यूस किया, ये वो। तो लाइट करना बंद कर, लाइट भी चालू किया, लाइट भी चालू करना, सर गेट बंद करना भूल गया। मैं सेकंड रूम में चला गया सोने के, फर्स्ट रूम में सोए थे, गेट वाला रूम में ठंडा हवा मारता था, उनको ठंडा हवा मार तो मेरे को गर्म हवा दी, समझ रहे? ऐसा हवा दी, ऐसा कमेंट मार एकदम, आप ऐसे ही हैं, आप यू आर लाइक दिस ओनली प्रभु भी दिया, समझ रहे? लेकिन इतना जोर से, इतना कर्कश आवाज में, तो मतलब समझ रहे? और ऐसे मेरा उनसे होते रहता, मैं कुछ बोलता है, मेरा नेचर था बोलना नहीं है, और उनका नेचर सब बोल देना, उनका स्वभाव था जो नहीं भी वो भी बोल देते, समझ रहे? और मेरा स्वभाव था जो सही है वो भी सुन लो, जो गलत बोला वो भी सुन लो, सहते रहो। लेकिन आज ज्वालामुखी ज्यादा मतलब, अरे इतना मेहनत करके आया, पूरा जान दे दिया हूँ, समझ रहे? मेरा हॉस्टल में सिंगल रूम था, ये सब छोड़ के मैं आया था, मेरे को याद आने लगा इसी के लिए, गाली खाने के लिए। मैं 2 घंटा साइकिल चला गया, मेरा बॉडी समझो क्या हालत हो गया, खाना भी नहीं खाया, भूख लग रहा है, फिर मैं सेक्रीफाइस करे मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए, और ये लड़का मेरे को दे दिया दोस्त, समझ रहे? क्या बोलने का स्वभाव नहीं था, हैबिट बहुत बार हेल्प कर चुके, आपने स्वभाव बनाया नहीं बोलने का, तो फिर नहीं निकलेगा उससे, तो नहीं निकला मेरा मुझसे। लेकिन अंदर अंदर हमको नींद कहा है, रात भर निकल ही रहा, ऐसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया, जूनियर है, ठीक है ये हो गया तो क्या हो गया। बाद में मेरा बहुत अच्छा रिश्ता हो गया उनसे, लेकिन उस समय में बड़ा अंदर से समझ रहे, ये मारा पूरा हृदय चल रहा था, ऐसा कैसे कर सकता है? हाउ मच आई सैक्रिफाइस आई एम डूइंग फॉर लॉर्ड। रात को मेरे को नींद नहीं आया, बहुत फ्रस्ट्रेशन छटपटा रहा है, एंड मैं सोचा सुबह वॉइस छोड़ दूं। सुबह क्या करेंगे हम वॉइस, शायद 3rd ईयर का बात है, मैं 3rd ईयर में था, वो 2nd ईयर में। हाँ मैं पढ़ाई भी सेक्रीफाइस कर रहा था, मैं मतलब और पढ़ाई करता तो मैं रैंक 1 भी आ सकता था, रैंक 5th तक 5th सेमेस्टर में जा चुका था, समझ गए? फिर भी मैं अपने आप मतलब, तो आई वाज थिंकिंग आई एम डूइंग ग्रेट सेक्रीफाइस फॉर लॉर्ड, एंड उन्होंने कोई एटलीस्ट अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो कमेंट तो मत मारो। मेरा गलती हुआ, लेकिन उसको इतना जोर से चिल्लाया, गेट बंद करके सो गए, नींद नहीं आ रही। आई थॉट कि मेरे को अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, मैंने इतना मैं कर रहा हूँ फिर भी मेरे को मतलब नहीं मतलब समझा जा रहा, तो बेटर है मैं वॉइस छोड़ देता। एनीहाउ विचार आया था, तुम लोग प्रभु जी से बात करते तो फिर जब सिखाया कि जब आप डिस्टर्ब होते तो आपका चेतना डाउन रहता है, लेकिन दूसरे आदमी डिस्टर्ब नहीं रहते, उनका चेतना ऊपर रहता है। उन्होंने मेरे को फिर मैं फॉरगिव कर सका उनको, आगे बढ़ सका। Anyhow, it's very important to have focus on our vision, why we have come. तो जीवन में बहुत बार लोग असम्मान करेंगे,
sometime for your genuine reason, sometime it may be completely their mistake. Still we should learn to why? Because you have to focus on it. और समटाइम आपसे भी गलती होगी, आपकी गलती ज्यादा होगी। जैसे एक बार पूरी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करा तो मैराथन के समय हम लोग 30 दिन पूरा फोकस था बुक डिस्ट्रीब्यूशन का। तो अलग अलग टीम जाता था, तो एक टीम जाता शिवाजी नगर, एक टीम जाता स्वार गेट, एक टीम जाता डेक्कन। तो दैट ईयर वी डिड मैक्सिमम बुक डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा पीडीसी बैच था, 30 लोग थे उसमें। तो अलग अलग बैच जाते तो मैं अपना रिजर्व कर लिया एक्स्ट्रा कि मेरे को फिक्स जगह दे दो, और सुबह ब्रेकफास्ट लेते के साथ ही हम भाग जाते। तो लोग रेस्ट रूम देता, मैं रेस्ट रूम का क्या जरूरत है, और पाजी को करना। क्योंकि ऐसे रेगुलर शेड्यूल में था, आपको एक दिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन था, एक दिन बाहर लेने, एक दिन हफ्ते में 2 दिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन रहता था। लेकिन इसमें क्या था, पूरा 30 दिन मैं बहुत इच्छा था भोपाल में कुछ करने का। तो हमने 2-3 लोग का टीम बनाया, 3 लोग थे हम लोग। मैं रोज एक ही जगह पर जाता, सुबह 9:30 पौने 10 बजे निकल जाता था, फिर लोग शाम को 7 बजे तक आए, जो भी हो। तो रोज 40 बुक, 30 बुक, 35 बुक, 50 बुक, 30 से 50 बुक जाता भोपाल के लिए कर रहे थे, और बहुत पैशन भी था उस समय। 2008 का बाद, मैं करीबन 24 साल का, समझ रहे, जवानी समझ रहे, अभी भी हम जवान। Anyhow, so I was very enthusiastic भोपाल के लिए कुछ करना है। जब इस साल ज्वाइन किए तो ज्वाइनिंग का एक अलग हो रहा था कि ज्वाइन किए पूरा माया को एकदम विचार कर देना है। I was very enthusiastic and I was hardly sleeping, working very hard. और साथ ही हम लोग पैकेट में थोड़ा सा राइस भी बनता, सुबह वही ले जाते करता, नहीं तो नहीं भी खाए कोई दिक्कत, बट फोकस थे कि फोकस से अच्छी बात है। लेकिन रजोगुण बहुत ज्यादा था, तो डिवोशन था लेकिन रजोगुण भी था। वो जो से अनाउंस करते थे, एक दुकान के सामने पार्किंग लॉट था, वहीं पर हम लोग अपना टेबल लगा, तो बाइक से आते थे लोग, पार्किंग लॉट में लगाते थे, हम लोग भी बीच में जगह। तो हमारे एक मित्र थे गंगाधर, मैं गंगाधर को एक और, कभी 3 रहते थे, कभी 2। एक दिन में 2 लोग थे और एक युवती कहीं आंखों की बात में आ रही। तो एक युवती बुक डिस्ट्रीब्यूशन, मैं टेबल पे था, बुक जा रहा नहीं था उसमें। सुबह 10:30 में लगाए थे और करीबन 1 बज गया था, दोपहर हो गया, बुक जाया नहीं था कोई। बुक नहीं जाए तो थोड़ा सा खलबली मचता, समझ रहे, बुक ले जा रहा है, हरे कृष्णा बुक ले लीजिए, समझ रहे, चिल्ला रहे हैं, समझ रहे, कोई टेबल पे आता ही नहीं है, खाली खाली बोर्ड टाइप का लगता है, समझ रहे। भगवद गीता संपूर्ण 18 अध्याय, 700 श्लोक, विश्वविख्यात भगवद गीता, मराठी सीखे थोड़ा, समझ रहे, आहे समझ रहे, हमें भूल गया क्या बोलते थे, समझ रहे। बंगाली को इधर बोलते बंगाली को बोलते थे, नींद भगवद गीता, नींद भालो भगवता, ऐसी प्रकार से मराठी में सरकार का, और हिंदी तो था ही। तो इस प्रकार से कोई आना नहीं था। तो एक आदमी बाइक लेके दूसरे ड्यूटी टेबल पैसे कटते, मैं इधर खड़ा था, एक आदमी बाइक लगाया, तो किसी का इंतजार कर रहा, उसको लेके गया, एटलीस्ट छुएगा तो बेनिफिट होगा। जो बोला देखिए पढ़िए, लेकिन वो बोला मेरा माथा गर्म हो रखा था, समझ रहे, भूख जा रहा नहीं था, समझ रहे, रजोगुण बढ़ गया था, समझ रहे, मेरा माथा गर्म था ही ऑलरेडी। मेरे को लगा था तो मेरा ट्रांसेंडेंटल कंपैशन है, तो मैं उसको दे रहा था, देखो देखो, बंगाली निकल रहा है, देखिए बस बहुत रिस्पेक्टफुली बिहेव कर रहा, वो एकदम पीसफुल था, जो उसको पता नहीं मैं बहुत डिस्टर्ब, साधु को पीसफुल हो रहा है, उसको डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन उल्टा था, वो पीसफुल था, मैं डिस्टर्ब था, कुछ हो रहा है नहीं, 2 बात के लिए
बड़ा उसको जबरदस्ती बलोत्पात प्रीचिंग, क्या कह रहा था उसको, वो नहीं सुनेगा तो हम तो सुनाएंगे। हम पूरा कन्विंस था, उसको सुनाने लगे, देखिए मनुष्य जीवन कितना महत्वपूर्ण है, ये वो है, पिक्चर देखिए जबरदस्ती, वो बेचारा एकदम पीसफुल, फुली डिटैच, जबरदस्ती उसको दिखा लो, समझ रहे। लेकिन वो बेचारा साधु का बड़ा रिस्पेक्ट करता, सह रहा था फिर, ध्यान रखते स्वभाव बस बेचारे साधु प्रकार हो रखा है, तो सह रहा था, उसको दिक्कत है। और हम तो दिए जा रहे, सुन रहा नहीं, हम खुद नहीं ले रहा, तो फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। देखो तो पढ़ो, एक पेज पढ़ो, बोले तो पता है मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, गीता पढ़ने के लिए। मनुष्य जीवन बुक नहीं पढ़ेगा क्या होता पता है। गोपाल का एक लेक्चर याद आया था मेरे को, गोपाल बोले पीपल विल नॉट प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस। एक बार लेक्चर दे रहे थे गोपाल यूनिवर्सिटी में, किसी ने पूछा गोपाल ने बोला स्वामी जी, गोपाल ने बोला इफ यू डोंट प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस then you will become dog in next week. किसी ने बोला कि what is the problem? I become dog in next week. गोपाल ने बोला you have my blessing, become a dog. लोग से बोलने लगा, मैं ही बोलने लगा, तो कुछ बोल रहा है। मनुष्य जीवन मिला, आप नहीं पढ़ेंगे तो पता क्या होगा, आप कुत्ता बनेंगे, समझ रहे। फिर भी वो हंस रहा था, पर मेरा आशीर्वाद आपको समझे। आओ उसका जो 15-20 मिनट से जो हुआ था, वो लोकल आदमी समझ रहे, आओ ज्वालामुखी फटा, क्या बोला समझ गए लोग, एनवायरमेंट क्या हो रहा है, 2-4-10 लोग बुला के लाया, समझ रहे, पूरा व्यू थे। तब तक मेरा जो मराठी फ्रेंड था गंगाधर, वो समझ गया कि मामला क्या होने वाला है। बोला प्रभु जी आप निकलिए यहाँ से, दूर दूर तक नजर मत आइए, तो कुछ होगा अभी। हम भी बोले मौके पर निकल जाना, ऐसे हर एक ने बाधा उठाए, हम बोले भगवान का नाम लो, निकलो, मैंने तो आज स्वाहा हो जाएगा मराठा महाराष्ट्र में। हम तो हम निकले, आया 10-20 लोग लेकर, क्या बोला समझ रहे, बोला बाप रे बाप, खतरनाक है दुनिया। The point is to learn to tolerate our emotions. कोई अगर भक्ति ना भी ले तो भी सहना सीखना चाहिए। So preaching to somebody, then take to Krishna consciousness. Still you should learn to not become angry at that. You become very impatient, chore in your life. Yes, you should feel concerned for that person. भक्ति नहीं ले पा रहे थे, but many times we will concern कि मेरा स्कोर नहीं आ रहा है, ये नहीं लेगा तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे लोग, समझ रहे आप? That is because of our rajoguna. इसके कारण भी लोग प्रेरित नहीं हो पाते हैं। मेरे को बहुत बुरा लगा उस दिन बाद में कि भाई मेरे बिहेवियर से कितना एंटीपैथी हुआ। यानी और फिर हम लोग जाते रहते हैं, बहुत बड़ा इशू नहीं हुआ, बट दुर्घटना होने का संभावना। इसीलिए हमें साधु को एटलीस्ट सीखना चाहिए कि बुद्ध आक्रमण, इसमें तो उसने आक्रमण नहीं किया, लेकिन उस एक तरह का आक्रमण को नहीं ले रहा है कृष्ण, समझना चाहिए भाई, नहीं ले रहा है तो तुरंत नहीं लेगा एक दिन। तमो गुण will not immediately appreciate कृष्ण का, समझ रहे, तो जबरदस्ती और फोर्स कर रहा था, that was something wrong. Instead of preaching, it was becoming सुनना रखो। पर इसीलिए हम लोग भूमि से सीख सकते हैं कि हमें टॉलरेट करना सीखना चाहिए, दूसरों को समझना चाहिए, उनका स्वभाव ऐसा है। Don't become angry at people. Okay, sometimes for those who we have circle of influence, we can become angry to help them become closer to Krishna. Otherwise, we should not become angry. So understand, it's the swabhav of people. Hero deva vasanuga.
समझना बहुत जरूरी है। जितना आपका फोकस होगा भक्ति में, इसलिए रोज सुनना चाहिए भक्ति कितनी इंपॉर्टेंट है। मनुष्य जो कितना, एक बार लोमस ऋषि थे, लोमस ऋषि के शरीर में बहुत लोम था, मतलब बाल, और एक बाल गिरता था एक कल्प में, मतलब 43 लाख 20,000 साल नहीं, 43 लाख 20,000 साल इंटू 1000, मतलब 432 करोड़ साल में उनका एक बाल गिरता है। एक बाल कितना दिनों में गिरता था? 432 करोड़ साल में। अब पूरा शरीर में बाल बाल बाल, हमारा शरीर में सब यहाँ बाल बाल, लाखों करोड़ों बाल। उनको वरदान था कि जितना, जब तक उनका बाल रहेगा तब तक वो जीवित रहेंगे। उनका आयु कितना हो गया? अरबों का। तो एक बार वो अपने डिसाइपल्स के साथ जा रहे थे, जब कर रहे थे तो वो धूप हो गई। शिष्य ने देखा बहुत धूप हो गई, तो उसने सोचा गुरु जी को तकलीफ हो रहा, तो झोपड़ी बना रहे। बोला गुरु जी आपको झोपड़ी बना दे। गुरु जी आपके क्या बना दे? एक झोपड़ी बना दे भजन में। लोगों से बोला बेटा बी केयरफुल, बी, इतना समय नहीं है, इतना समय मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। इतना टाइम लेके हम लोग क्या बनाए, झोपड़ी बनाने में समय व्यस्त नहीं किया जा सकता, इसलिए भजन करो। झोपड़ी बनाने समय बस चुका बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है मनुष्य जीवन। अगर 1-2-4 घंटा 2-4 दिन बर्बाद हो गया तो आयु कितना है? नाला है पूरा वर्ड नहीं कर, महान है हम लोग नालायक, बट उनका ओवर कितना है? 432 करोड़ इंटू लाखों। और वो 4 घंटा बर्बाद नहीं करना चाहते किसमें? एक भजन कुटीर बना। मनुष्य जो इस शरीर है वो खत्म हो जाएगा, वो पता नहीं चलेगा। शास्त्र के अनुसार बोला गया दुर्लभ लभिया संसार, लभिया संसार, कृष्ण न भजनो दुखा कोई कृष्ण न भजनो दुखा कोई तो मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, फोकस होना चाहिए। कब खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा। 60-70 साल है, कब फ्लैश की तरह खत्म हो जाएगा। Towards the end of life we will lament, भजन नहीं कर पाया, अच्छे से भजन कर लेना चाहिए, नहीं आपके साथ जाए। और भजन नहीं होगा जब आप दूसरों में दोष देखेंगे, दूसरों को नहीं सह पाएंगे तो नहीं भजन हो सकता। तो लोग कितना लोग आप कंट्रोल करेंगे? लोग तमोगुण रजोगुण में प्रभावित होकर आपको डिस्टर्ब करते रहे। Unless you learn to tolerate them and understand they're like this, how can a person peacefully chant every day? इसलिए यहाँ पे बहुत सुंदर शिक्षा है, सीखना चाहिए। बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि हमारा अहंकार बाहर आएगा, इसलिए भक्तों के संग में रहना बहुत अच्छा है, क्योंकि ना आपको अहंकार टूट जाएगा। कॉमन फैसिलिटीज होती है, लिमिटेड फैसिलिटीज होती है,
तो आपका जो अहंकार होता है कि मैं एंजॉयर हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, मैं एंजॉयर हूँ, मैं प्रोप्राइटर हूँ, टूट जाता है। सुबह टॉयलेट जाते समय आपको आपका अहंकार टूट जाएगा। मतलब क्लियरिंग का प्रेशर हो गया, खाली लिया, अरे प्रभु जी प्लीज निकल जाए, अमल होना ही पड़ेगा। समझ रहे? नहीं बोल सकते हो टॉयलेट करेंगे, कितना करोगे? ऊपर से डिसिप्लिन 4:30 पहुंचना है। समझ रहे? सुबह उठा नहीं जाता है, मतलब इतना स्वभाव है हमारा। सब उठ सकते, ठीक है 3 बजे उठ के रेडी हो जाएंगे, खाली रहेगा, वो भी नहीं होता। समझ रहे? अच्छा कंट्रोल करेंगे पर वो भी नहीं होता, लेट पहुंचे हो गए, बस पूरा एकदम प्रेशर है। समझ रहे? आपको प्यूरिफिकेशन हो जाए। और दूसरा लोग का भी स्वभाव हो, कुछ भी बोल सकता है, नहाएगा तो आपे पे छीटा मारेगा, आप नहा चुके। समझ रहे? आप सूची हो गए, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है, बताएगा वो जानता हम क्या करें। उसका शुद्धिकरण, उसका आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल विद प्यूरिफिकेशन। इस प्रकार से भक्तों के संग में आदमी को बहुत ही मौका मिलता है सहने का। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू फोकस। जब फोकस हट जाएगा तो सह नहीं पाएगा। एक बार प्रोग्राम में गया, मैं तो गाड़ी से लेके गए, मैं सोचा था मैं कितना बड़ा आदमी। समझ रहे? दुनिया ऐसा ही, कभी आपको गाड़ी पे चढ़ाएगा, कभी गाड़ी से एक बार प्रोग्राम अच्छा हो गया स्नान पूर्णिमा में, तो लोग चढ़ाने लगा, आप बोल दिया आप आचार्य है, ये है, वो है, ये वो। कभी कुछ गड़बड़ हुआ तो आपको तो उतारेगा भी। समझ रहे? तो दुनिया ऐसा ही, इसलिए बहुत सीरियस नहीं लेना चाहिए दुनिया का क्रेज और अपना भक्ति फोकस। ठीक है, लोग को रिस्पेक्ट देना चाहिए, ऐसा नहीं कि लोग प्रेज करे तो लोग एक्नॉलेज दैट, थैंक यू फॉर एनकरेजिंग, बट यू शुड अंडरस्टैंड ये सब जस्ट संबंध। ट्रेनिंग रहेगा तो साधु पीसफुली कंटिन्यू कर सकता है। एक बार प्रोग्राम में गया, बहुत बड़ा प्रोग्राम, पंडाल उंडाल बनाए थे, सब अच्छे से आयोजन, हमको प्रोग्राम हुआ, लोग आए थे, कीर्तन कथा हुआ। अगले दिन उनका कोई रिलेटिव आया, बूढ़ा व्यक्ति। समझ रहे? बूढ़े व्यक्ति आए और उनको बड़ा, उनको शायद बुलाए थे प्यूरिफिकेशन के लिए। मेरा बहुत बार लोग महात्मा जो टेस्ट करके बुलाए जाते हैं, महात्मा सही है कि नहीं, शायद उनको बुलाया गया था कि टेस्ट लीजिए, आया है, शायद वो प्यूरिफिकेशन उनका सेवा है दूसरों का। तो मैं रूम में पढ़ाई कर रहा था, समझ रहे? तब तक और जो कोऑर्डिनेटर था वो वॉइस में था यहाँ पर, और उधर प्रोग्राम चल रहा था। समझ रहे? घर पे तो हमको बुलाया गया, उसकी फैमिली वाले सब बढ़िया से कर रहे थे, और प्यूरिफिकेशन एजेंट आया, मुझे पता नहीं, मुझे ठीक है मिलने के लिए आए, कोई अच्छी बात। और बुला रहे, दादाजी बुला रहे, कोई तो बुला रहे, गए बात चेयर पर बिठाया गया, फिर मेरा रैगिंग लिया जा रहा। तो आपको कितना आता है? रामायण पढ़ा आपने? ये पढ़ा है? ऐसे बताइए था, इसे कैसे हुआ? ऐसे कैसे हुआ? एक चीज पता है तब तो दूसरा चीज पूछ लेता है, हम बताए नहीं उसका तो मतलब सुनना को मूड वाले, मतलब कहाँ फंसे जाते हैं। समझ रहे? मैं एक आंसर दे रहा हूँ तो दूसरा पूछ ले रहा हूँ, मतलब समझ रहे? और वो उसका पूरा ग्रुप वो हंसे जा रहा है, हाँ हाँ देखा देखा, अरे कुछ सुनो तो पहले। समझ रहे? वो अपने क्वेश्चन भी पूछ रहे, अपना भी आंसर दे रहे, सबको अपना, सबको अलग प्यूरिफिकेशन। अपने बोले साधु को पढ़ना चाहिए, इसीलिए समझे आप? मेरे से बात नहीं कर रहे, लेकिन साधु लोग को सब माता जी को बिगाड़ दिया। साधु को कहा है सूट हो, माता जी आ जाए कहीं पर शॉर्ट हो, ऐसा 5-5 रुपया दे देगी, हो गया इसका तो एक 500 रुपया मिल गया। ऐसे पूरा मतलब बर्बाद कर दिया। इन साधु लोग को जाता है, पढ़िए थोड़ा जाइए। थैंक यू वेरी मच। अंदर तो गुस्सा चढ़ रहा था, पढ़ ही रहे थे तुम डिस्टर्ब करके बुलाया। बट फिर मैं सोचा चलो भगवान क्या सिखाना चाह रहे थी, एंड मैं किसी को बताया ना, डिवोटी को किसी को, I just came and I was thinking deeply, I started chanting and I started praying to Lord. Thank you very much. ठीक ही बोल रहे, साधु को पढ़ना चाहिए, डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ तो बढ़िया बोल रहे कि मैं
और पढ़ना चाहिए, समझ रहे? नहीं तो बट आई वाज मतलब उस वक्त डिस्टर्बेंस फील हो रहा था भाई, ऐसा मतलब ऐसा डायरेक्ट ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मतलब एनी हाउ आई एम सेइंग इट्स डिफिकल्ट। विजन क्लियर नहीं हो तो आदमी गुस्सा हो जाएगा, क्या मैं इतना महंगा अगली बार से नहीं आएंगे ये वो। ठीक है जो भी हो, दुनिया में लोगों का स्वभाव है। ठीक ही बोल रहा, बात तो गलत नहीं बोला, साधु को पढ़ना चाहिए, बहुत सारे साधु नहीं पढ़ते, पैसा लेते। इस प्रकार से साधु सिद्धि को वेलफेयर ऑफ फोकस शुड बी क्लियर। ऐसे तो बहुत सारी चीजें बताने के लिए नहीं बताएंगे। एनी क्वेश्चन से एनीबॉडी है? सुखबार जोर से बोलिए। गाइडेंस लेना होता है, शास्त्र पढ़िए, सतोगुण में आएंगे तो आपको दिखेगा। तो देखिए कभी कभी टॉलरेट नहीं करना होता, जनरली साधु को टॉलरेट करना। जनरली भक्तों को अगर शुरू में ट्रेनिंग दे रहे अपने आप को ट्रेन कीजिए कि टॉलरेट कीजिए। बिगिनिंग डेज में बेटर है ट्रेनिंग करना। अगर आप साधक बन रहे हैं तो सर ट्रेन कीजिए अपने आप को टॉलरेट करने। तो हमारा स्वभाव है ही रख लोगों, मतलब रिएक्ट तो हम करने वाले थे, पहले करते थे रिएक्ट, समझ रहे? तो अब थोड़ा सा प्रयास कीजिए टॉलरेट करने में शुरू में, ज्यादा अच्छा है कुछ दिन के लिए एटलीस्ट। उसके बाद आप थोड़ा सा मैच्योर होने लगेंगे तो आप देख सकते हैं कब रिएक्ट करना चाहिए कब नहीं करना। तो यूजुअली हम लोग अपने बारे में सोचते हैं तो बेटर है शुरू में हमारे अपने बारे में, अपने सेल्फिशनेस के कारण ही हमको कष्ट हो रहा है तो हमको टॉलरेट कर लो। उसका गलती है, उसका गलती नहीं, मेरा भी गलती कि मेरे को गुस्सा है, समझे आपके पॉइंट? मैं अपने आप सुधारता हूँ। लेकिन आप जो मैच्योर होने लगेंगे तो आप देख सकते हैं आपका कोई ग्रज नहीं, लेकिन उसके वेलफेयर के लिए उसको सुधारने के लिए बोलना पड़ेगा। उसकी गलती है नहीं सुधारेंगे तो उसके बाद में दिक्कत होगी। You can politely go and correct it. ये पॉइंट समझ में आया? भीम जो था पूरा गुस्सा हो गया था, तो वो जंगल में सफरिंग हो रहा था। जब सफरिंग आता है जीवन में तो आदमी सह नहीं पाता, तो बोलता है भीम देने लगा युधिष्ठिर को डोज, और भीम और द्रौपदी एक टीम हो जाती है। युधिष्ठिर का एक्सट्रीम, वो तो फॉरगिवनेस का एक्सट्रीम, वो अपना कन्विंस है फॉरगिवनेस नहीं होगा दुनिया नहीं चलेगा, ये नहीं होगा वो। तो भीम पूरा डोज देने लगा, द्रौपदी उसको डोज दे रही, मतलब युधिष्ठिर को, और भीम और द्रौपदी मिलकर भीम बोला तुम्हारे कारण मेरा है, हम लोग को जंगल में सफर करना पड़ा, उसी से बोला था तो मार खत्म कर दो। ऐसे बहुत देर डिस्कशन कर रहा था, लंबा डिस्कशन। एक तरफ भीम बोलता है अभी तो हम लोग जाके युद्ध करके अभी तुरंत जीत लेना है। ये डेस्टिनी पे क्यों डिपेंड करने का? भाग्य में लिखा होगा, भाग्य किसके लिए है? भाग्य जो बोलते भाग्य भाग्य में होगा मिलेगा, ये केवल नपुंसक लोगों के लिए है, ये सब लेजी लोगों के लिए है, ये सब मतलब भाग्य पे हमेशा डिपेंड करना होता है तो उठता है। तो उन्होंने बोला कि आप ओवर एम्फेसिस दे रहे हैं भाग्य पे, हम लोग अपना प्रोग्रेस, क्षत्रिय को अपना प्रोग्रेस पे डिपेंड करना है। तो बोला कि हम लोग जाके झगड़ के जीत लेना। तो फिर पूरा बोलता अभी मैं जाकर लोगों को मार दूंगा। तो युधिष्ठिर से शांत हो, तुम गुस्सा करना ठीक है, लेकिन तुमको क्या लगता है तुम जाएगा तुम मार देगा, ठीक है तुम दुर्योधन को तो मार देगा, हो सकता है कर्ण को ही मार, लेकिन तुमको नहीं पता भीष्म भी तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएंगे। तुम डायरेक्ट मारने जाएगा उनको तो भीष्म भी तुम्हारे अगेंस्ट होगा, भीष्म को सब आएगा। वो अपने पूरा एक एंगल से पूरा नहीं सोच पाया, तो जिस एक जगह से देख रहा है। ध्रुव महाराज जब क्रोधित हो जाते यक्षों को मारने लगते तो स्वयं आके समझाते बोलो क्यों यक्ष को आप मारो, एक यक्ष ने आपके भाई को मारा, उसके पूरा यक्ष का करोड़ों 1,30,000 यक्ष को आप मार रहे, एक भाई को एक यक्ष मारा, उसके लिए 1,30,000 पर कम्युनिटी को डाल दो क्या? तो ये उचित नहीं, आपका अति क्रोध है क्या है? उसका समझाते देखो कुबेर लोग का यक्ष को मारो दिक्कत नहीं पड़ी, यक्ष लोग किससे कनेक्टेड है? कुबेर के आदमी, और कुबेर जी शिव जी के बहुत प्योर डिवोटी सब। तो फिर कुबेर जी का आपको मतलब कुबेर जी का आपके मन थोड़ा सा आपके ऊपर टूट जाएगा, तो फिर आपको अपराध हो जाएगा, आपको दिक्कत होगा। वो केवल यक्ष को देख रहा है, लेकिन पीछे में कौन कौन सपोर्ट सिस्टम से वो नहीं दिखता है, समझ रहे?
बहुत बार हम लोग पूरा फुल पिक्चर नहीं देख पाते, समझ रहे? मान लो कोई दुर्गा पूजा चढ़ना मानने वाले लोग नहीं देखे, अब उसके पीछे पूरा कमेटी पूरा हो सकता है, वो कमेटी बोले लोग ऐसे भी होते दुर्गा पूजा हम लोग दुर्गा पूजा कैसे हम लोग ऑलरेडी देते हैं, ऐसे नहीं बोल सकते। तो वो आदमी तो एक अकेला है, 2-4 लोग, और आपको लग रहा है 50, और 4 के पीछे पूरा गाँव, मतलब समझ रहे? और आप अगर इस प्रकार से सब गंदा बोले दुर्गा पूजा समझ रहे, तो छोटा सा बात यीशु बने और हुआ था यीशु को उठाएगा, तब पता नहीं कौन बोला, कोई स्टूडेंट बोला, मैं तो एकदम बोला नहीं, वो लोग चंदा मांगने से कोई चंदा बच्चा सही से बोला नहीं। तो जब यीशु चल रहा था अनन्या केस वाला, तो जब जेल में पुलिस थाना में डिस्कस हो रहा, तो मालूम करके लोग को छोड़ देना, अब चंदिर पूजा बच्चा और चंडी पूजा अगर बेचे चंदा मांगे बोले चंडी पूजा दीवे राम लाल कराओगे इसको कम से ऐसा बहुत बोला, पता नहीं। So you should understand कब क्रोध होने के, ठीक है हम लोग क्रोध होने सारा लेंगे उसको, लेकिन पूरा बहुत सारा पीछे बैकग्राउंड है, इट मेक सेंस, सोच समझ के क्रोध, कभी क्रोध तो उचित है, लेकिन देखना चाहिए किसका बच्चा है, कौन है, पॉइंट समझ में ये बनेगा इसको तुम तो एक अपने इच्छुक उदाहरण दिया था, साथ में थे वो उनको बचाने के लिए प्रयास कर रहा था। वहीं जो भक्ति सिद्धांत संघ को कई जानवर भी देखते हैं, जो साफ होगा अपने इस्तेमाल तो फिर वैसे एक और ये अपना है वस्तु विश्वास, वस्तु जो बच्चन कर रहे थे, कहावत में लिखा है कि इट्स नॉट सेम टाइप से जो बात की जीवन में लिखते हैं, कई बार जब एक मछली को काट रहा है तो बोले कि उसको मार दो, अब ये आता ही होता है। यस, देखिए हमारा विजन शुड बी क्लियर, टॉलरेंस इज नॉट आवर अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, समझ रहे? लाइक क्लीनलीनेस, अहिंसा परमो धर्म बोलते हैं कुछ लोग। अब जाएंगे पारसनाथ तरफ तो बहुत बड़े बड़े बोर्ड में लिखा हुआ अहिंसा। देखिए युधिष्ठिर महाराज नहुषा से जब डिस्कशन होता है तो नहुषा जी एक प्रश्न ये भी पूछते हैं युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर बड़े ज्ञानी थे, तो उनको बताते हैं भगवत भक्ति जीवन का लक्ष्य, ऐसे डिस्कशन होता है, नहुषा जी बहुत खुश हो जाते हैं, वो अपने सांप शरीर से बाहर आ जाते हैं। तो उस डिस्कशन में एक प्रश्न उठता है कि कौन सबसे ज्यादा जरूरी है, दान या तप या अहिंसा, मतलब ऐसे करके धर्म के अलग अलग जो लिंब है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? तो नहुषा जी ने बताया युधिष्ठिर को, देखिए सब लिंब इंपॉर्टेंट है, सब लिंब कोई एब्सोल्यूट नहीं, लेकिन आपका वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम प्लेस सर्कल, समझ रहे? एंड यू शुड हैव नॉलेज ऑफ टाइम प्लेस सर्कल एंड अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग कि गोल क्या है, वो भगवान के निकट ला रहा है। कभी कभी टॉलरेट करने से भगवान के, मेन हमारा विजन है टॉलरेट करें भगवान के निकट जाए। मच्छर को मारोगे तो आपके अंदर रजोगुण बढ़ जाता है, तो भावना बढ़ सकती है, समझ रहे? जैसे साधु ट्राई करना चाहिए टॉलरेट, हमारे जिनको स्वभाव है हम मच्छरदानी यूज कर सकते हैं, अंदर घुस गया तो गमछे से हटा सकते हैं। अब कभी कभी प्रभुपाद का विजन था कि उनको प्रभुपाद पूरा विश्व कल्याण करें, समझ रहे? तो आप जब चाणक्य पंडित बोल रहे कि एक परिवार के लिए एक व्यक्ति का कल्याण मतलब सेक्रीफाइस किया जाए, एक समाज के लिए एक परिवार का सेक्रीफाइस, और पूरे राष्ट्र के लिए एक गांव का पूरा सेक्रीफाइस, और सिमिलरली वो बोलते लास्ट लाइन में कि वैसे आत्म कल्याण के लिए पूरे राष्ट्र का आप सेक्रीफाइस, पूरे विश्व को छोड़ सकते हैं। फॉर आत्म कल्याण यू कैन गिव अप द होल, यू कैन रिनाउंस द होल वर्ल्ड फॉर आत्म कल्याण। वैसे ही अगर मान लीजिए अब कम्युनिटी में कोई चूहे एकदम फैल गए, बच्चों को काट ले रहे, सेवा नहीं कर पा रहे, तो चूहों को मारना पड़ेगा। प्रयास करना चाहिए नहीं मारे, बिना मारे हो जाए अच्छा है, ऐसा नहीं कि बिना कोई प्रयास के बस मार दे, बस
चलो, that is not very good. That will increase our animosity. But this understand, I don't want to kill it. But for a higher cause, otherwise फिर बहुत लोग मर जाएंगे, प्रचार नहीं होगा। समझ रहे? तो कोरोना किसी को हो जाएगा, उसको क्यों क्वारंटाइन किया जाए? अब एक आदमी को मारने से बाकी लोग बच रहे, समझ रहे? तो ऐसे आदमी का विजन होना चाहिए, कैसे भक्ति फैले, कैसे लोग भगवत धाम। ये जेल है, जेल में कभी कभी टॉलरेट करना, यूजुअली साधु को टॉलरेट करना बाय डिफॉल्ट अच्छा है, एंड समटाइम फॉर अ हायर पर्पस। तो जिस साधु ने अच्छे से टॉलरेट किया है जीवन में, तो फिर वो युक्त वैराग्य कर पाता। तो अपने लिए नहीं मारेगा कोई बच्चों को, कोई हायर कॉज के लिए, सेवा के लिए मारेगा। नहीं तो फिर क्या होगा, वो अपने लिए मारेगा और बोलेगा मैं सेवा के लिए मारूंगा। इसलिए मैं बताया था, इनिशियल डेज में ज्यादा बढ़िया टॉलरेट करो। गुरु जी का ट्रेनिंग में इनिशियल डेज में अच्छा है कि आदमी समझना सीखे, समझ रहे? इसलिए कभी कोई जान कोई कॉन्स्टेंट कंडीशन में रखा जाता है शिष्यों, ताकि वो फैसिलिटीज पर उतना डिपेंड नहीं हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्या होता है, विनम्रता आ जाती है, शुद्धिकरण होता है, तो फिर भजन उसका कभी बाधित नहीं होगा, तो जीवन में समस्या आएगी। आप सीनियर बन जाओगे तो आपके पास बहुत लॉजिक रहेगा, कारण रहेगा, अपने लिए आप नहीं करो, दूसरों के लिए करो ना, लेकिन हो सकता है उसमें आपका निहित हो बात। तो जब आप बढ़िया से प्यूरिफाइड हुए हो, अपने लिए कभी नहीं किए, तो फिर जीवन में आप जब भी यूज करोगे उसको लाइकली अपने लिए नहीं करें। अपने लिए आपको करना होता 5 साल ट्रेनिंग किया, कभी अपने लिए नहीं किया, समझ रहे? ऐसा मेरा एडजस्ट कर दिया। लास्ट क्वेश्चन 1 घंटा हो गया ना? हाँ, देखिए इसका ट्रेनिंग मिला है कि जनरली हमें 2 तरह का टॉलरेंस, एक बॉडीली टॉलरेंस है, एक मेंटल टॉलरेंस, समझ रहे हैं? तो हमने बताया था आप लोगों को कि एक बिहेवियर होता है बिहेवियर पैटर्न्स में, फ्रिजिड बिहेवियर, फ्रीज हो जाना। मोड ऑफ इग्नोरेंस में आगे क्या होता है, कोई भी कुछ बोले, कोई बोल रहा नहीं लेकिन डिस्टर्ब है। मोड ऑफ पैशन में क्या है, वो रिएक्ट कर जाता जैसी कि तैसी, समझ रहे? मोड ऑफ गुडनेस में he is not reacting with purified consciousness। मान लीजिए कोई गाली दिया, अरे नटुआ, मान लिया कोई आपको बोला, अरे पकड़वा, मान लिया कोई बोला, फ्रीजिंग मोड है, मतलब भाई बोला मेरे को पकड़वा, लेकिन क्या करे, झगड़ा करे फायदा, फिर ग्रुप में कौन झगड़ा करेगा? तो आपको क्रोध आ रहा है लेकिन आप सह रहे, बट मेंटली आप प्यूरिफाइड नहीं हो रहे, ऐसे मत आप झगड़ा कर ली तो आप ही दे देंगे। लेकिन गुडनेस में हम समझते कि स्वभाव बस एक्ट करे, तो स्वभाव में कमेंट मार डालो, नेक्स्ट याद होगी तो ये इसके बोलने से हो गया। आदमी डिटेल में सोचता है पीसफुल माइंड से, तो गुडनेस में कभी कोई क्लैरिफाई भी कर देता है, आप मेरे को नाटा बोल रहे हो, कोई कारण निकाल दिया, मैंने आपको कुछ गड़बड़ किया है क्या, मतलब तो डिस्कशन भी हो जाता है। तो असर्टिव बिहेवियर, पैसिव बिहेवियर, रिएक्टिव बिहेवियर एंड असर्टिव बिहेवियर। हम अपना अधिकार भी रखते हैं और दूसरों को भी अधिकार। तो स्टडी रूम कोई बात कर रहा है, बोलते कोई भी पॉलिसी बनाए तो बाहर बात कर सकते हैं, यही 4 को बोल दिया। तो गुडनेस में आदमी टॉलरेट भी करता है और अपना मेंटली भी वो बुद्धि लगा के टॉलरेट करता है। तो ठीक है, शुरू में अब उतना मेंटल काम नहीं करता है तो शुरू में टॉलरेट कीजिए, धीरे धीरे मेंटली प्यूरिफाइड हो, तो फिर आपको ग्रज नहीं रहेगा, समझ रहे? साधु का संग करेंगे तो आपको समझ में आएगा बहुत बार कि उसका कितना स्ट्रगल हो रहा है बच्चे का, तब आपको समझ आएगा देव हो बस। तो साथी से रिश्ता बनाएंगे तब पता चले वो भी नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत बार देव बस करना।
धीरे धीरे, वही तो बोला ना आपको, इग्नोरेंस में आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो इसीलिए उसको ट्रेनिंग सुनिए, बार बार कंसल्ट कीजिए सुपीरियर से, तब फिर आपको उसको पूरा पिक्चर दिखेगा, समझ रहे? तो आप जब सुपीरियर का सर्व करेंगे तो आपका भी चेतना ऊपर उठेगा। ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम।